ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے اور اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کرتی ہے، مگر میں ان میں سے ہوں جن کو ایسے خوابوں کا بھاری تاوان دینا پڑتا ہے، اور میں نے تو کبھی سوچا تک نہیں تھا مجھے میرا یہ خواب اتنی بھیانک تعبیر کی شکل میں میرے سامنے آئے گا۔ میرا بچپن عام بچوں جیسا خوبصورت نہیں تھا۔ میں 7 سال کی تھی جب میری ماں کسی بیماری میں مبتلا ہوئی اور پھر 1 سال کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری عمر تو اس وقت کھیلنے کی تھی، مگر ابو نے میری گود میں میرے ننھے سے بھائی کو ڈال کر کہا کہ اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، جب تک میں کچھ نیا انتظام نہیں کر لیتا۔ ابو کے نئے انتظام کے بارے میں میرا ذہن کچھ سوچ ہی نہیں پایا، البتہ اپنے چھوٹے سے 1 سال کے بھائی کو پیار کرنے اور اسے سنبھالنے کی میں اپنی سی کوششیں کرنے لگ گئی۔ گھر میں ابو اور میرے علاوہ بس یہی ننھا فرشتہ تھا۔ ابو ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے۔ وہ صبح سویرے اسکول کے لیے نکلتے اور شام کو ٹیوشن وغیرہ سے فارغ ہو کر مغرب تک ہی گھر لوٹتے تھے۔ گھر میں کوئی اور تو تھا نہیں جو میری اور میرے بھائی کی دیکھ بھال کر سکتا۔ امی کے انتقال کے بعد کچھ دن پپھو ہمارے ساتھ رہیں اور اس کے بعد میری تائی امی نے چند دن گھر اور ہمیں سنبھالا، مگر کوئی کب تک کسی کے لیے سہارے اور آسرے کا کام کرتا ہے؟ ظاہر ہے سب کی اپنی زندگی اور مصروفیات ہوتی ہیں۔ اب 2 دن سے میں اور میرا بھائی اکیلے گھر میں سارا دن گزار دیتے۔ ناشتہ ابو خود بنا کر جاتے، ہمیں بھی کھلا کر جاتے، اور جاتے ہوئے کچھ ضروری چیزیں جیسے فریج میں دودھ، بسکٹ اور چھوٹے بھائی کا دلیا وغیرہ رکھ کر مجھے کافی ساری باتیں سمجھا کر چلے جاتے۔ ابو کے جانے کے کچھ دیر بعد چھوٹا سو جاتا تو میں بھی وہیں کمرے میں کھیلتی رہتی یا تھک ہار کر چھوٹے کے پاس ہی سو جاتی۔ پھر دوپہر 12 بجے محلے سے ایک آنٹی ہمارے گھر آتی اور ہمیں کھانا کھلا کر جاتی، جو وہ اپنے ساتھ ہی لایا کرتی تھیں۔ دوپہر کے 2-2.5 گھنٹے وہ ہمارے پاس رکتی، چھوٹے کے کپڑے بدلتی، مجھے نہلاتی اور کپڑے بدلواتی، میرے بالوں میں تیل لگا کے کنگھا کر دیتی، کسی دن گھر کی صفائی بھی کر دیتی اور پھر اپنے گھر چلی جاتی۔ شام کو ابو آتے ہوئے دودھ اور کھانا بازار سے لے کر آتے تھے، ہمیں کھانا کھلاتے اور خود کھا کر باہر لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے یا کوئی نہ کوئی کام اپنا کر کے پھر سو جاتے۔ ہم ابو کے کمرے میں دوسرے پلنگ پر سویا کرتے تھے۔ رات کو اکثر چھوٹا جاگ جاتا اور خوب روتا دھوتا تو ابو کی نیند خراب ہوتی، مگر وہ اسے کچھ دیر گود میں اٹھا کر سلا دیتے اور خود بھی سو جاتے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں چھوٹے کو کیسے چپ کراؤں، کیسے سنبھالوں۔ ایسے ہی 1.5 مہینہ گزر گیا، مگر یہ 1.5 مہینہ میرے ساتھ ساتھ میرے ابو کے لیے بھی آسانی سے نہیں گزرا تھا، اور ایک دن جو ہوا وہ کاش کبھی نہ ہوتا۔ میں تو محلے کے ایک اسکول میں پڑھتی تھی، مگر جب سے امی گئی تھی میں بھی اسکول کا رخ کرنا بھول بیٹھی تھی۔ ابو نے بھی مجھے اسکول بھیجنے کی بات تک نہیں کی، ورنہ گھر میں چھوٹا کس کے پاس رہتا۔ ایک دن جب ابو کے اسکول کی چھٹی تھی، شاید اتوار تھا، ابو نے حسب معمول صبح کا ناشتہ بنایا، ہم دونوں کو بھی ناشتہ کروایا اور مجھے کہا کہ چھوٹے کو سنبھالو، میں کچھ صاف صفائی کر لوں۔ پھر ابو نے پورے گھر کی صفائی کی، نئے پردے اور چادریں بچھائیں جو ابو شاید بازار سے کچھ دن پہلے لائے تھے۔ ابو نے یہ سارا کام 2-2.5 گھنٹوں میں پورا کر لیا اور گھر بہت پیارا اور صاف ستھرا لگنے لگا۔ پھر ابو کپڑے بدل کر باہر چلے گئے اور جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئے کہ میں کسی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ میں بے چینی سے ابو کا انتظار کرنے لگی۔ کوئی 3-4 گھنٹوں بعد دروازہ بجا تو میں نے آواز پہچان کر دروازہ کھولا، مگر ابو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ لال رنگ کے سوٹ میں ایک عورت بھی تھی جس نے زیور پہن رکھے تھے، اور وہ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت پیاری لگی۔ ابو نے بتایا کہ وہ میری نئی امی تھی جو اب گھر کے ساتھ ساتھ مجھے اور چھوٹے کو بھی سنبھالیں گی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور جھٹ سے ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے بھی مجھے پیار کیا اور پھر چھوٹے کو اپنی گود میں لے لیا۔ وہ رات چھوٹا میرے پاس ہی سویا، لیکن دوسرے دن سے صبح کو ناشتہ باہر سے آیا اور ابو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر ابو نے امی کو گھر کے تمام خرچوں اور ضروری باتوں کے بارے میں تفصیل بتائی۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی ابو نے باہر سے منگوایا۔ اس دوران سارے وقت میں چھوٹا امی کے پاس ان کی گود میں ہی رہا اور میں بھی سائے کی طرح ان کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ کبھی ان کی چوڑیاں دیکھتی تو کبھی کانوں میں پہنے بڑے بڑے جھمکے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ وہ ہنستی ہوئی اور بھی پیاری لگتی تھی۔ میرا نام نورین تھا، مگر انہوں نے مجھے پہلی بار نوری کہہ کر پکارا
तो मुझे अपना ये नाम बहुत अच्छा लगा। फिर उस दिन की शाम को हम तैयार होकर अम्मी अब्बू के साथ बाहर घूमने गए। पता नहीं कितने टाइम बाद मैं अब्बू के साथ बाहर आई थी। इससे पहले जब मेरी अम्मी ठीक थी तो हम कभी कभी घूमने जाया करते थे, मगर अम्मी के बीमार होने और इंतकाल के बाद से बिल्कुल भी बाहर नहीं गई थी। मुझे घूम फिर कर बहुत अच्छा महसूस हुआ, और मज़े की बात तो ये थी कि छोटा भी पहले की तरह बार बार रो नहीं रहा था। फिर 2-3 दिन मज़ीद अब्बू जॉब पर नहीं गए और घर में सुकून ही सुकून था। अब नई अम्मी ने घर में ही नाश्ता और खाना बनाना शुरू कर दिया था। वो बहुत मज़े का खाना बनाती थी। मुझे मेरी अम्मी की याद आ जाती तो मैं उदास हो जाया करती। तब वो मुझे किसी न किसी तरह बातों में लगा लेती। 4 दिन बाद अब्बू ने स्कूल जाना शुरू किया तो अब्बू ने मुझे भी स्कूल भेजने की बात की, जिस पर अम्मी ने कहा कि अभी नूरी को स्कूल ना भेजें, अभी तो नया नया है सब कुछ मेरे लिए, तो मेरा दिल कैसे लगेगा। अब्बू ने मुस्कुरा के उनकी बात मान ली और वो चले गए। उनके घर से जाने के बाद अम्मी ने मुझे आवाज़ दी और छोटे को पकड़ने का कहा और ख़ुद कमरे में लेट कर सो गई। कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया था। मैं कुछ हैरान और कुछ परेशान सी छोटे को लेकर दूसरे कमरे में बैठी रही। फिर छोटा भी सो गया तो मेरी भी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अम्मी के कमरे में जाकर देखा, उनका दरवाज़ा अब तक बंद था। छोटा उठकर रोने लग गया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बजाकर अम्मी को बुलाना चाहा, मगर उन्होंने कहा कि फ्रिज से दूध का फीडर निकाल कर उसे पिला दूं, और दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को जब अब्बू घर आए तो अम्मी ने फ़ौरन छोटे को अपनी गोद में ले लिया और कहने लगी कि सारा दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मगर मैंने छोटे को अपने साथ ही रखा। अम्मी के इस साफ झूठ पर मुझे बेहद हैरत हुई, मगर उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। अब अम्मी अब्बू के जाने के बाद ज़्यादा वक्त सोने या टीवी देखने में गुजारने लगी और छोटा मेरे पास ही होता। घर में सिर्फ खाना अम्मी बनाती थी या रोटी पकाना उनका काम था। बाकी झाड़ू पोछा और बर्तन मुझे धोने का कहती, और उन्होंने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया था, ये कहकर कि ऐसे बच्ची घर गृहस्थी कैसे सीखेगी। अब्बू तो अम्मी की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, मगर इस सारे सिलसिले में सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा और मेरे छोटे भाई का हो रहा था। छोटे को माँ की गोद क्या मिलती, उसे तो खाना तक मैं खिलाती थी। अब मैं ही उसकी बहन और मैं ही उसकी माँ थी, और चंद महीनों में ही मुझे ये समझ आ गई थी कि अम्मी जो अब्बू के सामने बनती थी वो सिर्फ दिखावा था, मगर अपना असल रूप तो उन्होंने मुझे 6 महीने के बाद दिखाना शुरू किया। फिर जब तक मैं 12 साल की हुई, अम्मी का अपना एक बेटा था। वो सारा दिन अपने बेटे के नाज नखरे उठाने में गुजार देती, और मेरे भाई के हिस्से में उनकी सिर्फ डांट और मार आती थी। अब तो मैं रोटी भी पकाने लग गई थी। मुझे बुखार होता तब भी मैं काम करती, और अब्बू तो जैसे हमारी तरफ से आंखें बंद ही कर ली थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वक्त ने तो गुजरना ही था, मगर गुजरते वक्त ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया था। मेरे हाथ बर्तन धो धो कर घिसते जा रहे थे। मुझे तो लगता था जैसे मेरे हाथों की लकीरें ही मिटती जा रही थी, और मेरे भाई को सिवाय डांट फिटकार के कुछ नहीं मिला। अम्मी उससे घर और बाहर के सारे काम करवाने लग गई थी, और अब्बू ने बस अपने दूसरे बेटे को तवज्जो देना ही अपना फ़र्ज समझा हुआ था। हमारे लिए बस घर की छत, रोटी और कपड़े ही अब्बू का फ़र्ज़ रह गए थे। कपड़े भी 2-2 साल बाद बनते। घर में फालतू सामान जैसी हैसियत थी हमारी। मुझे तो ये आस थी कि मेरी शादी होगी तो इस जहन्नुम से निजात मिल जाएगी, मगर मेरे भाई का क्या होगा, ये सोच सोच कर मेरा रहा सहा सुकून भी बर्बाद हो जाता। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब मैं 20 साल की थी और मेरा भाई 12 साल का था। हुआ यूं कि हम सब दोपहर के वक्त बड़े कमरे में सोए हुए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से गलियां भी सुनसान रहती थीं। अम्मी और उनका बेटा बेड पर और हम दोनों बहन भाई ज़मीन पर लेटते थे। तकदीर की सितम ज़रीफ़ी पर सोचते सोचते मेरी भी आंख लग गई, मगर जब आंख खुली तो छोटा भाई वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने सोचा बाहर निकल गया होगा दोस्तों के साथ, मगर वो रात तक घर नहीं आया और फिर वो कभी नहीं लौटा। अब्बू ने उसको काफ़ी तलाश किया, मगर फिर गालियाँ देकर सुकून से बैठ गए। लेकिन मैं हफ्तों तक अपने भाई को याद करके रोती रही और उसकी खैरियत की दुआएं मांगती रही। उसने नहीं आना था, वो नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया था। लेकिन मुझे इतना यकीन था कि वो जानबूझकर घर छोड़ के गया था, पर उसने मेरा ख्याल ही नहीं किया कि मैं अकेली उसके बगैर कैसे रहूँगी। फिर हफ्ते महीनों में बदल गए और मुझे भी सब्र आ गया, मगर दिल को किसी तौर करार नहीं आता था। इधर अब्बू को अब मेरी शादी की फिक्र हो रही थी। कई रिश्ते आते, मगर अम्मी 100 कीड़े निकाल कर इनकार कर देती।
जाने वो क्या चाहती थी। शायद उनको मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, इसी वजह से वो हर रिश्ते को ठुकरा देती थी। मगर ऐसा कब तक चलता। आखिरकार फिर खुद अम्मी के एक जानने वाले के ज़रिए एक रिश्ता आया जो मेरी माँ को बहुत पसंद आया। रिश्ता काफ़ी अमीर घराने से आया था और उन्होंने जहेज़ लेने से इनकार कर दिया था। उल्टा उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें मंगनी के बाद हमारे घर पहुँचाना शुरू कर दी। जब मंगनी हुई थी तो मेरी सास ने मेरे लिए 5 जोड़े और एक सेट सोने का जेवर भी दिया था और अम्मी के लिए भी काफ़ी तोहफ़े लाई थी। और ये सिलसिला चल निकला। मंगनी के बाद पहली ईद आई तो मेरी सास ने नया सोफ़ा सेट हमारे घर भिजवा दिया और मेरी माँ खुशी से निहाल होती जा रही थी। फिर कुछ ना कुछ तोहफ़ों के नाम पर मेरा घर भेजा जाने लगा। मैं समझ गई कि अमीर घर देखकर ही अम्मी ने रिश्ते को हाँ की थी। ऊपर से वहाँ मेरी होने वाले ससुराल में सिर्फ मेरी सास और होने वाले शौहर ही थे। उनका नाम फर्रुख था। वो माँ बाप का इकलौता वारिस था। उन लोगों का अपना ज़ाती बिजनेस था जिसे पहले फर्रुख के वालिद संभालते थे और उनके इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने ऊपर ले ली थी। बेटा भी साथ ही होता था, मगर सुना था कि बेटे समेत घर और ऑफिस में सास का ही रोब था। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस यहाँ अपने घर से जान छुड़ाना चाहती थी, मगर मेरी सास का रवैया इतना अच्छा था शादी से पहले ही कि मैंने चाहते हुए भी आने वाली ज़िंदगी के हसीन ख्वाब देखने लगी। मंगनी के 2 माह बाद शादी थी मेरी। इस 2 माह में एक मर्तबा भी मेरी बात फर्रुख से नहीं हुई थी। मुलाकात तो दूर की बात थी। मेरी सास ही हमारे घर आती जाती। वो हमेशा अपनी कार में ही आया करती थी। फिर जब शादी के दिन रखे गए तो मेरी सास ने अम्मी से इजाज़त लेकर मुझे हर दूसरे दिन बाजार लेकर जाना शुरू कर दिया। मेरी पसंद की चीज़ें, कपड़े और बहुत सा सामान लिया। यहाँ तक कि मेरी पसंद से नया फर्नीचर मेरे कमरे के लिए ख़रीदा गया। मैं तो खुशी से फूले जा रही थी कि इस कदर मोहब्बत करने वाली माँ का बेटा कितना अच्छा होगा। मेरी सास का दिल नहीं, समंदर था जो खुलकर दूसरों पर लुटता था, और मैं तो उनकी इकलौती बहू थी। मेरी शादी का कीमती जोड़ा और सोने के जेवरात पहनकर जब मैं दुल्हन बनी तो मेरी माँ को बेख्तियार मुझ पर प्यार आ गया। ये प्यार भी किसी दिखावे का मजहर था। वो अब मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती थी ताकि अपनी सास की तरह शादी के बाद मैं भी उनको कीमती तोहफ़े देती रहूं। शादी के दिन मुझे मेरी सगी माँ और भाई बेहद याद आए। मैं रुखसती पर बहुत रोई, मगर मेरी सास ने बड़े प्यार से मुझे संभाल लिया। फिर कार में बैठकर दुल्हन बनी हुई मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची। ससुराल का घर क्या, ये तो पूरा बंगला था। घर में दाखिल होने से पहले मेरी नज़र अपने शौहर फर्रुख पर पड़ी थी। उनकी शख्सियत बेहद खूबसूरत थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। मुझे लगा कि जैसे सदियों की मुशक्क़त के बाद अब मुझे मेरे सब्र का सिला मिल गया था। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगी जब वो मुझे मेरे कमरे के बजाय अपने कमरे में ले गईं। कमरे में जाने के बाद उन्होंने मुझे सोफ़े पर बिठा दिया और खाने का नौकर से कहा। खाना भी आ गया, लेकिन फर्रुख कमरे में नहीं आए। मैंने सास के साथ खाना खाया तो उन्होंने मुझे कपड़े बदल कर सोने का कहा। मैं सोच में पड़ गई कि आज ही मेरी शादी हुई है और ये मुझे अपने कमरे में भेजने की बजाय यहीं सोने का क्यों कह रही हैं। मगर मैं उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं रखती थी। खामोशी से उठी और कपड़े बदल कर उनके बिस्तर पर बैठ गई। मेरी आंखों में सवाल था और वो समझ गई थी। उन्होंने बताया कि उनके ख़ानदान में ये रिवाज है कि शादी के बाद 3 दिन तक दूल्हा दुल्हन कमरे में इकट्ठे नहीं रहते। 3 दिन बाद वलीमा होगा। मैं चुप करके लेट गई और सोचते सोचते सो गई। सुबह आंख खोली तो मेरी सास कमरे में नहीं थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो उनको लाउंज में बैठे पाया। उन्होंने मुझे देखते ही पास बैठने का कहा और एक मुलाजमा को नाश्ते का कह दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा इतना बड़ा घर होगा और नौकर चाकर मेरा काम कर रहे होंगे। अब यही सब देख और सोच रही थी कि एक मुलाजिम ने मेरे मैके से मेरी अम्मी और भाई की आने की इत्तला दी। अम्मी और मेरा सौतेला भाई मेरे लिए नाश्ता लेकर आए थे और अम्मी बड़ी वारी सदके जा रही थी। मैं सोच रही थी कि पैसा ही सब कुछ है, जिसने आज मेरी माँ का रवैया ही मेरे साथ बदल दिया था। नाश्ते के बाद कुछ देर अम्मी बैठी और मेरी सास ने उनको कीमती तोहफ़े दिए और वो घर चली गई। उसके बाद मेरी सास ने मुझे पूरा बंगला दिखाया। इस दौरान मुझे फर्रुख कहीं नज़र नहीं आए। फिर मेरी सास मुझे फर्रुख के कमरे यानी मेरे कमरे में लेकर गई। बहुत खूबसूरत कमरा था जिसमें मेरा पसंद किया हुआ फर्नीचर लगा हुआ था। ये कमरा तो किसी ख्वाब से भी ज़्यादा हसीन था। पूरे कमरे में 6 बड़ी खिड़कियाँ थीं जो बाहर लॉन में खुलती थी और दाईं तरफ एक बड़ी अलमारी बनी हुई थी। मैं कुछ देर अपनी सास के साथ रुकी और फिर वो मुझे वापस अपने कमरे में ले गई। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद ज़िंदगी मामूल पर आने लगी।
मेरी सास रोज़ाना ऑफिस जाने लग गई और फर्रुख को मैं बस ऑफिस से आते जाते ही देखा करती। मैं भागकर कभी उनके पीछे जाने की कोशिश करती या मुखातिब करने की कोशिश करती तो वो एक नज़र मुझ पर डालकर फटाफट वहाँ से निकल जाते। सास ने कहा था कि 3 दिन बाद वलीमा होगा और मैं भी अपने कमरे में रहूँगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अब मैं सारा दिन मुलाजमाओं के साथ घर के काम करवाती रहती। मैं खुद तो कोई काम नहीं करती थी, बस नौकरों को ऑर्डर करना होता था या अपनी निगरानी में काम करवाना होता था। सुबह सास और शौहर के जाने के बाद मैं सफाई करवाती और फिर किचन में खाना बनवाने का काम होता। खाना बनवाकर पैक करवा के अपनी सास और शौहर के लिए ड्राइवर के हाथ ऑफिस भेजा करती और खुद अकेली बैठकर खाना खाती। रात को खाने की मेज़ पर एक दिन फर्रुख भी मौजूद थे। उन्होंने बिल्कुल खामोशी से खाना खाया और इस दौरान उन्होंने एक नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। खाने के बाद वो फौरन अपने कमरे में चले गए और मैं कामों में लग गई। काम ख़त्म होने के बाद मैं रोज़ की तरह सास के कमरे में गई और उनके पास लेट गई। मैंने उनसे हिम्मत करके पूछ ही लिया कि फर्रुख बात क्यों नहीं करते और मैं कब तक यहाँ इस कमरे में रहूँगी। मेरी सास ने मेरी जानिब ऐसे देखा जैसे मैंने उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी, लेकिन फिर बड़े तहम्मुल से मुझे कहने लगी कि बेटा, तुम्हारा शौहर फर्रुख का जहनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है, इसी वजह से ये सब पाबंदियां रखी गई हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया कि जो मैं सुन रही हूँ वो सच था या मजाक। अगर फर्रुख को कोई जहनी मसला था तो ये बात शादी से पहले या शादी के वक्त भी हमें नहीं बताई गई, और मुझे तो फर्रुख को यहाँ घर में चलता फिरता देखकर बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि उनको कोई जहनी माजूरी या किसी किस्म का कोई मसला है। मेरी तो समझ से ये सब बाहर था। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखी। मेरी सास ने भी मुझसे बात ना की इस बारे में। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी सास से कहा कि मुझे फर्रुख के कमरे में रहने की इजाज़त दे दें ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं, मगर मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया। अब ये सब मेरी हिम्मत और बर्दाश्त से बाहर था, तो एक रात मैंने भी एक मंसूबा बनाया और उस पर अमल करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। फिर मुझे 1 हफ्ते बाद ही मौका मिल गया। मैंने उस रात अपनी सास के खाने में नींद की गोलियां मिला दी ताकि वो गहरी नींद सो जाएं और मैं अपने शौहर के पास जा सकूं। सास ने जब खाना खा लिया और कमरे में जाकर सो गई तो मैं चुपके से उठी और फर्रुख के कमरे में जाकर उस बड़ी अलमारी के दूसरी तरफ छुप गई जहाँ पर्दा था, और पर्दे से मुझे कोई देख नहीं सकता था। फर्रुख उस वक्त वॉशरूम में थे। मैं खुश हो रही थी कि अपने शौहर से मिलूंगी, और मेरा दिल डर भी रहा था कि जाने फर्रुख क्या कहेंगे मुझे ऐसा करने पर। कुछ देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो मैंने जो मंजर देखा उसके बाद मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फर्रुख ने काले रंग का लंबा सा चोला पहना हुआ था और उनके गले में मोटे मोटे दानों वाली 2-3 माला झूल रही थी। हाथों में एक मोटे दानों की तस्बीह थी। फर्रुख ने बेड के नीचे से कुछ सामान निकालना शुरू किया और कमरे के बीचों बीच वो सारा सामान सजा कर बैठ गए। मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था, जैसे साधु अपनी तपस्या के लिए हाथ जोड़ कर बैठ जाता है, या शायद जादू। ये दिमाग में आते ही मुझे चक्कर आ गए कि क्या वो जादू टोने का काम करते थे। जब मैं अचानक बेहोश होकर गिरी तो फर्रुख ने मुझे देख लिया और जल्दी से उठाकर सोफे पर बिठाया। जब मुझे होश आया तो फर्रुख अपना हुलिया बदल चुके थे और बिल्कुल रोज़ जैसे नॉर्मल नज़र आ रहे थे। अब कमरे में कोई सामान भी नहीं था जो उन्होंने बेड के नीचे से निकाला था। मुझे होश में देखकर पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए उनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। डर के मारे मेरा दिल बेकाबू हुआ जा रहा था और मुझे तो लग रहा था जैसे फर्रुख मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पानी का गिलास मेरे हाथ से लेकर उन्होंने सामने वाले मेज़ पर रखा और वापस मेरे करीब सोफे पर आकर बैठ गए और पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे छुपकर देखने का मकसद क्या था। मैंने उनको जवाब दिया कि शादी को 4 महीने हो गए हैं, मगर आपने आज तक मुझसे बात की, न मुझे अपने कमरे में आने की इजाज़त दी। मम्मा से भी पूछ पूछ कर हार गई, मगर वो कहती हैं कि आप ज़हनी तौर पर माजूर हैं। मेरी बातें सुनकर फर्रुख खामोश रहे और फिर कुछ देर बाद बोले कि ये सब करना उनकी मजबूरी है। वो अपनी माँ के कहने पर कोई चिल्ला काट रहे थे जिसकी वजह से उनके कारोबार में इजाफा होगा। बस यही वजह थी कि उन्होंने ये सब ढोंग रचाया और मुझे इतने महीने अपने ही शौहर से दूर रखा। फर्रुख की बात सुनकर मुझे हैरानी तो बहुत हुई, मगर मैं अब उनसे क्या कहती। मैंने पूछा कि ये सब कब तक चलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक उनकी माँ चाहेगी यही सब चलता रहेगा। और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक और सच मेरे सामने रख दिया।
वो असल में मेरी सास की सगी औलाद नहीं थे, बल्कि फर्रुख की सगी माँ के इंतकाल के बाद फर्रुख के वालिद ने उनसे शादी की थी। तब फर्रुख 10 साल के थे। मम्मा ने ही फर्रुख को पाला पोसा था और पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा था, ऐसे कि फर्रुख बिना माँ की इजाज़त के सांस लेना भी गुनाह समझते थे। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जो मेरे साथ हुआ वही सब फर्रुख के साथ हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि फर्रुख को ज़हनी तौर पर अपने काबू में करके रखा गया था और मुझे तो मेरी माँ ने सुकून से जीने भी नहीं दिया था। मैंने आंसू साफ करते हुए फर्रुख से पूछा कि फिर मुझसे शादी क्यों की, अगर ऐसे ही चलना था सब कुछ। फर्रुख ने नदामत से अपना सर झुका लिया, जैसे इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था, और फिर कुछ देर बाद बोले कि तुम मेरी शरीके हयात हो, मेरा साथ दो। मैं कमरे में रात को बंद होकर ये सब चीज़ें निकाल कर सिर्फ ढोंग रचाता हूँ। मुझे कोई जादू टोना या कुछ भी नहीं आता, ना उन चीज़ों में पढ़ना चाहता हूँ। जब तक मम्मा है ये सब ऐसे ही रहेगा। मैं उनकी बात समझ गई थी। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही इम्तहानों में गुजरी थी, चलो एक इम्तहान और सही, मगर मुझे नहीं पता था कि इस इम्तहान का क्या नतीजा निकलेगा। मैंने फर्रुख के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। और ये कहकर मैं अपनी सास के कमरे में जाकर उनके साथ बिस्तर पर लेट गई। मेरी सारी रात आंखों में कट गई। मेरी सास सुकून से सो रही थी, फिर जाने कब मुझे नींद ने अपनी आहोश में ले लिया। सुबह मैं अपनी सास को गौर गौर से देख रही थी। वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, उनको शक तक नहीं हुआ था। तैयार होकर वो और फर्रुख ऑफिस चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। उस दिन मैंने बड़े दिल से और एहतमाम के साथ दोपहर का खाना बनाकर ऑफिस भेजा और रात के खाने में भी मुलाजमा से पूछकर फर्रुख की पसंदीदा चीज़ें तैयार की। और शाम होते ही उन लोगों के ऑफिस से आने से पहले नहाकर जोड़ा तब्दील किया और हल्का फुल्का मेकअप करके बाहर आई। मेरी सास मुझे देखकर खुश हुई, मगर उनकी खुशी में हैरानी की आमेजिश भी थी। फिर मैंने खाना लगवाया और फर्रुख भी खाने की मेज़ पर आ गए। 4 महीनों में आज पहली बार उन्होंने मुझे आंख उठाकर देखा था, मगर आंख भर के देखने का अभी वक्त नहीं आया था। अब वो कभी कभी दिन में किसी वक्त जब मौका मिलता अपनी माँ से नज़र बचाते हुए मेरी तरफ देख लेते और हल्की सी मुस्कुराहट का तोहफा मुझे दे जाते। मेरे लिए तो ये भी बहुत था। अब मुझे लगने लगा था कि जैसे ज़िंदगी में अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, जब सब कुछ मेरा होगा और मैं फर्रुख के साथ खुलकर हंस बोल सकूंगी। रोज़ की रूटीन में दिन रात बदलते रहे और एक दिन बहुत बड़ी खुशी की खबर मेरी दहलीज पर चल कर आ गई। हुआ यूँ कि मुलाजिम ने मेरे भाई के आने की इत्तला दी तो मैं ड्राइंग रूम में गई, मगर वहाँ तो मेरा सौतेला भाई नहीं था, बल्कि कोई और नौजवान था जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। मेरे जाने पर उसने अपना रुख मेरी जानिब फेरा और मैंने उसे पहचानने में 1 सेकंड नहीं लगाया। वो भी बाजी कहता हुआ मुझे गले लगा चुका था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद मैं अपने सगे भाई से मिल रही थी, जो 13 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था। कभी उसको देख रही थी, कभी ये जानने को बेकरार थी कि वो कहाँ था, क्यों गया था। उसने मुझे सब बताया। उसने कहा कि अम्मी अब्बू के रवैये से परेशान होकर वो एक दोस्त के कहने पर दूसरे शहर चला गया था। वहाँ जाकर एक कारखाने में काम सीखने लग गया और वहीं रहने लगा। और अब जब वो एक कामयाब नौजवान था जो मेहनत करके अच्छा कमाने लग गया था, तो सिर्फ मेरी खातिर लौटा। वो पहले अब्बू और अम्मी के घर गया तो वहीं से उसको मेरे ससुराल का पता मिला था। मैं अपने भाई से मिलकर बेहद खुश हुई। उसको कहा कि अब राब्ते में रहे और उसने अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दिया और दोबारा मिलने आने का वादा करके चला गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और अपनी खुशी फर्रुख से बांटना चाहती थी, मगर मामा की वजह से तो मैं फर्रुख से बात तक नहीं कर पाती थी। अब तो मुझे वैसे भी काफ़ी सुकून मिल चुका था, इसलिए फर्रुख के घर में उनको देखते हुए खामोशी से कामों में लगी रही और वक्त का परिंदा परवास करता रहा। शादी के पूरे 1.5 साल के लंबे इंतज़ार के बाद वो घड़ी नसीब हुई जब मैं हकीकत में अपने फर्रुख की दुल्हन बनकर उनके कमरे में पहुंची। और ये मुमकिन हुआ था जब मेरी सास का अचानक एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मुझे उनके दुनिया से जाने का दुख था, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके वहम और कच्चे अकायद ने मुझे और मेरे शौहर को इतना अरसा एक दूसरे से दूर रखा। अब मैं और फर्रुख बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने एक अच्छी जगह पर अपने भाई की शादी भी करवा दी थी और मैं मुतमईन थी कि ज़िंदगी के इतने साल सब्र और हिम्मत का इतना प्यारा सिला मिला था, जिस पर मैं हरदम शुक्रगुजार रहती थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें
اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔